Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. So as we are all aware that we have completed the first chapter of secretarial practice 12th commerce, that is introduction to corporate finance. है ना? So let us finish little bit of exercises also. The first exercise which we are going to solve is question number 1A, that is select the correct answer from the options given below and rewrite the statements. ठीक है? The first one is dash is related to money and money management. Students, we are all aware when we have started with the chapter, हमने finance के बारे में थोड़ा पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था उस slide में कि finance is related to money and money management. Remember the inflow and outflow? सेम गोज हियर ऑल्सो. तो प्रोडक्शन मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं है. द करेक्ट आंसर इज फाइनेंस. whenever it is about money and money management, the answer will be definitely finance. ठीक है. Second one is finance is the management of dash affairs of the company. Students, finance term आते ही anything which is related to finance, which is sort of synonym आप बोल सकते हो कि फाइनेंस, मनी, कैश, कैपिटल. सो ऑब्वियस है कि फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ मॉनिटरी अफेयर्स ऑफ द कंपनी, है ना, पैसे से रिलेटेड. सो द करेक्ट आंसर इज मॉनिटरी. ठीक है. द थर्ड इज कॉर्पोरेशन फाइनेंस डील्स विथ द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ डैश बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन. राइट आंसर, एज यू कैन सी, आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड कैपिटल. तो अगेन फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल ही होगा, क्योंकि फाइनेंस, एज मैंने पहले भी कहा, फाइनेंस, कैश, कैपिटल, दे आर ऑल रिलेटेड, इजंट इट? द सेम, रियली स्पीकिंग. सो इट डील्स विथ कैपिटल. फोर्थ वन इज कंपनी हैज टू पे डैश टू द गवर्नमेंट. तो कंपनी जब प्रॉफिट्स करती है तो उसका पार्ट ऑफ द अमाउंट विल गो टू द गवर्नमेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज टैक्सेस. डिविडेंड तो हो नहीं सकता, गवर्नमेंट ने ना ही कंपनी का शेयर लिया है, ना ही उन्होंने डिबेंचर्स लिए, तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट आर नॉट द राइट आंसर्स. द करेक्ट और द राइट आंसर इज द टैक्सेस. ठीक है. फिफ्थ वन इज डैश रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स असेट्स. हम फिक्स असेट्स खरीदते हैं विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड capital. So the right answer is fixed capital. We are not concerned with the authorized capital, issued capital. It happens when the company का जो share structure है, या we are talking about the entire different capitals of the company, then we can think about authorized, issued capital. But here we are talking about fixed assets. So the right answer is fixed capital. ठीक है. The next point, that is the sixth point, is dash refers to the excess of current assets over current liabilities. Obviously the right answer is working capital. Remember students, when we were studying about working capital, the total of current assets is working capital. The excess of current asset over current liabilities is working capital. So obviously ये जो डे टू डे एक्टिविटीज पे जो खर्चे होते हैं, दैट इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट, द टोटल वॉट एवर करंट एसेट्स यू हैव invested. So here it is working capital, the right answer. The seventh point is manufacturing industries have to invest a dash amount of funds to acquire fixed assets. Manufacturing industries की जब हम बात करते हैं तो obviously the production is on a higher level. ये इंडस्ट्रीज गुड्स ऑन अ वेरी हाई लार्ज स्केल प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑब्वियसली इनका एक्वायरिंग ऑफ फिक्स एसेट्स इनका ज्यादा होता है. ओके, वी वर ऑल्सो एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट्स ऑल्सो व्हेन वी वर डीलिंग विथ फिक्स्ड कैपिटल, दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव टू इन्वेस्ट मोर इन द फिक्स एसेट्स बिकॉज इट्स अ प्रोडक्शन गोज ऑन, and industries have to buy the fixed assets. If you're starting with the production machine की जरूरत तो पड़ती ही है ना. Right answer is huge. Eighth point is when the population is increasing at high rate, certain manufacturers find this as an opportunity to dash the business. The correct answer, as I have highlighted, is expand. सही है ना. So when the population is increasing at higher rate,
तो मैन्युफैक्चरर को एक अंदाजा आता है, मोर द पॉपुलेशन देन लोगों का डिमांड बढ़ जाता है। इससे अच्छा है कि कंपनी एक्सपांड करे और ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करे। ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा सेल होगा, ज्यादा सेल होगा तो ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेगा। तो व्हाट दिस कंपनीज डू, दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड द बिजनेस। ठीक है। द 9th पॉइंट इज द सम ऑफ ऑल डैश इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वेरी ट्रू। और ये वर्किंग कैपिटल के टॉपिक में ही हमने पढ़ा था दैट द सम ऑफ ऑल करंट असेट्स इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। द टोटल ऑफ करंट असेट्स, जितना भी करंट असेट में आपने इन्वेस्ट किया है, जितना भी कैश किया है, कुछ बाय किया है, छोटे मोटे एक्सपेंडिचर्स है, तो ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इट इज नॉट एक्सपेंसेस नॉर करंट लायबिलिटीज। ओके। The 10th one is the dash means mix up of various sources of funds in a desired proportion. Very true. Capital structure is the right answer and it because वो एक proper desired portion में वो source divide करते हैं। जैसे डेप्ट इक्विटी, डेट से आप कितना लोन ले रहे हो और इक्विटी शेयर से कितना ले रहे हो, यू आर मेकिंग अ प्रोपोर्शन, इजंट इट। तो राइट आंसर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है। और मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा था, तो दैट इज द राइट आंसर। स्टूडेंट सेकंड इज मैच द प्लेस। तो दिस आर वेरी सिंपल, मैंने एरो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आंसर्स को दिखाने की कोशिश की है। द फर्स्ट वन इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्यों करते हैं, बजट करना, प्लान करना, कैपिटल बजटिंग अगर हम करते तो ये क्यों करते, क्योंकि हम एक सही जगह पर इन्वेस्ट कर सके। दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज इट इज हेल्पफुल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सेकंड इज फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि टू बाय द फिक्स असेट्स। सो द सेकंड वन इज फिक्स्ड असेट्स। स्टूडेंट्स यू कैन सी द एरो हियर ना, so I hope it is very very clear. Working capital, working capital is the total of current asset. अभी हमने fill in the blanks में भी यही पढ़ा, तो what is the right answer? Working capital is sum of current assets. Capital structure फिर से आ गया है, obviously यहीं पर यहाँ पर भी वही है, mix up of various sources of funds, that is proper debt equity ratio. And the last one is corporate finance. So what is corporate finance? Deals with acquisition and use of capital. See the arrow which is going to number 2 here, point number 2. So the right answer is deals with acquisition and use of capital. Students, these are very simple. इसके पीछे का लॉजिक अगर आप समझोगे तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी होगा एंड यू विल रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, let us go to the क्वेश्चन नंबर 1C। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। ओके, एंड दिस सम विल बी रिपीटेटिव। अ की डिटर्मिनेंट ऑफ एनी बिजनेस फंक्शन, की डिटर्मिनेंट, फाइनेंस, फाइनेंस नहीं होगा, रिमेंबर फाइनेंस इज द बैकबोन, फाइनेंस इज you can say arm or leg, remember, so it is the key determinant of success of any business function. The decision of finance manager which ensures that firm is well capitalized, financing decision है ना, और कौन लेता है ये financing decision? Finance manager. Clear? Then the third one is the decision of finance manager to deploy the fund systematic manner. जब कोई भी फंड इन्वेस्ट करने के लिए एक सिस्टमेटिक मैनर से जाते हैं तो वो और कुछ नहीं, वो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही कहलाता है। सो द डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फोर्थ पॉइंट, कैपिटल नीडेड टू एक्वायर फिक्स असेट्स विच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। विच कैपिटल? ऑब्वियसली फिक्स असेट्स, फिक्स्ड कैपिटल। द सम ऑफ करंट असेट्स, immediately I think now you all are also understanding how we have related working capital. The excess of current assets over current liabilities, working capital again. इसका रीजन हमने पहले भी पढ़ा है। सेवेंथ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। ऑब्वियसली प्रोडक्शन साइकिल में क्या होता है कि ये एंटायर प्रोसीजर कवर करता है जहां पर एक रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उसको आप फिनिश्ड गुड्स में चेंज करते हो, isn't it? Then eighth one,
the boom and recession cycle in the economy. Anything which is related to boom, increase in the prices, recession, decrease, is nothing but business cycle. ये business ही तो है ना, ज्यादा सेल हो रहा है तो बूम है, कम हो रहा है तो रिसेशन है, तो ये बिजनेस का ही हाल है. 9th point, the ratio of different sources of funds in the total capital. जब भी कोई भी सोर्सेज का रेशियो अगर हम पढ़ते हैं तो इट इज नथिंग बट कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है. एंड द 10th पॉइंट हियर इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग. हमने ओन फंड्स और बोरोड फंड्स पढ़ा था. ओन फंड्स में आपका इक्विटी प्रेफरेंस. रिमेंबर स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग टू रिलेट द थिंग्स एंड आई एम टेकिंग यू इन द फ्लैशबैक ऑल्सो, कि आप उसको थोड़ा सा याद करके जान सको. रिटेन्ड अर्निंग्स इज द आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट. ट्रू. ये फाइनेंस का मीनिंग में ही बताया गया है. बिजनेस फर्म गिव्स ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट प्रॉफिटेबल. वेरी ट्रू है ना. अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो उसमें जाएंगे ही नहीं. कॉर्पोरेट फाइनेंस ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज. ट्रू. क्योंकि अगर फाइनेंस ही नहीं है तो फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम होगा. प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा तो सेल्स ठीक से नहीं होगा. सेल्स ठीक से नहीं होगा तो प्रॉफिट्स भी नहीं आएगा. तो इट विल अफेक्ट द कोऑर्डिनेशन. वेरी ट्रू. फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो रिफर्ड एज सर्क्यूलेटिंग कैपिटल. फॉल्स. Fixed capital nahi, working capital is also referred as a circulating capital, so it's totally wrong. That is false. 5th one, working capital stays in the business almost permanently. Again false. कौन सा capital permanently रहता है students? Fixed capital है ना. So that's why it is false. 6th, the business will require huge funds if assets are acquired on lease basis. False. अगर लीज बेस में लेते हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट विल रिक्वायर लेस ना, क्योंकि लीज पे लिया है सिर्फ वही अमाउंट उनको लीज अमाउंट देना पड़ेगा. अगर वो बाय करने जाएंगे असेट तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा ना. isn't it? So they require less funds. That's why the answer is false. The business dealing in luxurious products will require huge amount of working capital. True. क्योंकि लग्जरियस प्रोडक्ट्स दिन एवरी डे कोई खरीदता नहीं है. दिन आई मीन टू से एवरी डे, रोजाना कोई खरीदता नहीं है. ये प्रेस्टीज इशू गुड्स है. डायमंड हो गया, आपका कार हो गया, ये रोज रोज थोड़ी ना खरीदेंगे. तो उनका वर्किंग कैपिटल तो ऑब्वियस है ना, वो बढ़ जाएगा. सो इट्स ट्रू. ठीक है. टिल हियर आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. इजंट इट स्टूडेंट्स? चलो 8th पॉइंट क्या है? A firm with large scale operations will require more working capital. True. ज्यादा बहुत बड़े पैमाने में जो ऑपरेशंस होते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, उनको लोगों की जरूरत पड़ती है. मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, मशीन की मेंटेनेंस, रिपेयर्स, रॉ मटेरियल, तो ये ज्यादा चाहिए ना, तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा. सो इट इज ट्रू. लिबरल क्रेडिट पॉलिसी क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ बैड डेट्स. ट्रू. अगर आप अपना कलेक्शन, पैसों का जो कलेक्शन होता है वो टाइम से नहीं करोगे तो ऑब्वियसली लोग और डिले करेंगे पे करने के लिए. सो इन दैट केस इट इज ट्रू दैट देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ बैड डेट्स. आंसर इज ट्रू. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स केटर टू द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. ट्रू. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो है वो रोज के जो ज्यादा करके जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है बिजनेस का, उसको फाइनेंस करने में लगे होते हैं. दैट इज वेरी ट्रू. ठीक है. नाउ देयर इज योर ई एक्सरसाइज आल्सो व्हिच इज वेरी सिंपल. फाइंड द ऑड वन. ये आपको जब दे विल बी आस्किंग यू फाइंड द ऑड वन एंड देयर यू हैव टू हाईलाइट और अंडरलाइन. ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश. नो, इज अ फिक्स असेट्स. लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट में कैश इज अ current asset, so you have to highlight cash. Second is debenture capital, equity share capital, preference share capital. Obviously debenture capital because it is a debt, है ना. It's type of a loan. Then you have to highlight debenture capital. Third is fixed capital, capital structure, working capital.
fixed capital, working capital, there are types of capital requirements. Capital structure is specially for the desired proportion of sources of finance like debt equity ratio. Remember, so you have to highlight capital structure. ठीक है ना? Okay. Then students, let us go to the next, that is complete the sentences. It's very important. Huh? F, complete the sentences. Initial planning of capital requirement is made by obvious है finance manager. When there is boom in economy, sales will increase, है ना? डिमांड ज़्यादा है, लोग खरीद रहे हैं तो सेल्स तो इंक्रीज होंगे ही होंगे. The process of converting raw materials into finished goods is called production cycle. ये previous एक exercise में आया भी था. And it's very clear. During recession period, sales will obviously automatically decrease. कम हो जाएंगे. Isn't it? Let us go to the G part of it. Select the correct option from the bracket. Financing decision. You can see the brackets are given below. You have to choose from these brackets. ठीक है? Financing decision to have right amount of capital. आप अगर decision ले रहे हो, क्या decision ले रहे हो? Capital related ना. So the answer is to have a right amount of capital. Longer period of time. लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम किसके लिए होता है? फिक्स कैपिटल के लिए होता है, क्योंकि टू परचेज द फिक्स एसेट्स जो ऑलमोस्ट परमानेंटली रहते हैं ना बिजनेस में. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिप्लॉय फंड्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर. आपका जो डिसीजन है, क्या डिसीजन है कि आप जो भी फंड्स है उसको सिस्टमेटिकली बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, इजंट इट? उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सर्कुलेटिंग कैपिटल को हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. Combination of various sources of funds, its capital structure. ठीक है? Let us go to the H part of it. Answer in one sentence. Students, it's very simple. I think you people have already written also and have understood also. Define corporate finance. You have to define here. Okay. So is one of the definition is it is nothing. It is dealing with raising and using of finance by a corporation. Very simple. What is fixed capital? Capital used for buying fixed assets, है ना? Define working capital. Capital used to carry out day-to-day business activities, है ना? Every day you require ना to invest something or the other to spend for the business activity. That is called as working capital. Again, what is production cycle has come? The process of converting raw materials into finished goods. Define capital structure. The long term. Here we are defining. It is the long-term source of funds employed in business enterprise, isn't it? ये शायद लोन हो सकता है या इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, बट इट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म. देन आई, that is correct the underlined word and rewrite the following. Students, rewrite मतलब ये आपको फिर से लिखना है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करके. फाइनेंस इज फर्स्ट वन. द फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू डिबेंचर होल्डर्स. रॉन्ग. डिविडेंड नहीं, हम डिबेंचर होल्डर्स को क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट, है ना? सेकेंड, व्हेन देयर इज रिसेशन इन इकोनॉमी, सेल्स विल इंक्रीज. व्हेन देयर इज रिसेशन इन इकोनॉमी, सेल्स विल इंक्रीज. नो, सेल्स तभी इंक्रीज होगा व्हेन देयर इज बूम. रिसेशन में सेल्स डिक्रीज होता है. सो यू हैव टू राइट बूम. शेयर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन रेज्ड बाय द कंपनी. नो, शेयर इज नॉट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन. डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन, है ना? एंड द फोर्थ वन इज इक्विटी शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट. नो, प्रेफरेंस शेयर्स कैरी डिविडेंड फिक्स रेट. इक्विटी शेयर का डिविडेंड तो फ्लक्चुएशन में होता है ना? सो स्टूडेंट्स, आई हैव कवर्ड हियर द मोस्ट important objective type questions in this video. These are very important objectives which are asked in the examinations, and if you clear it and you will get straight away full marks, because objectives में आपके marks का कुछ deduction ज़्यादा करके नहीं होता है. Rest all the questions which are there below, they are in the long theory form. You can take the points and write in your own words. You can also see my slides where you can write the points and try to explain in your own words. ज़्यादा करके examples लिखो और अपने words में explain करो.
Okay, so that will help you to get good marks. So I think this exercise which we have solved have helped you to understand, और ये एक बार आप देख लोगे पढ़ लोगे तो you will remember it for a longer period of time. So students, thank you so much. I have completed the exercise also of secretarial practice chapter 1. So I'll be back with some other subjects, or maybe the very soon I'll be coming with the second chapter of secretarial practice. Till then, thank you so much, students. Thank you. And also want to say that if your doubts are cleared, your concepts are cleared, kindly like, share and subscribe Commerce Tute. Thank you so much.